मुंतकिल किया गया। चादर मुबारक हटाई गई, रुखे ताबा नजर आया और लोगों ने आलम बरज़ख के एक ऐसे मुसाफिर का दीदार किया जो खुद मुस्कुराता हुआ और हमें रुलाता हुआ चला गया। अहले खाना की हालत गैर थी, पूरा घर मातम कदा बना हुआ था। ऐसा लगता था कि दरो दीवार से भी रोने और सिसकने की आवाज़ आ रही है। क्या हो गया? चिल्ला दे, लगता मैं कि खराब हो गया। यहाँ तक साफ आ रहा है, अंदर जाके गंदा हो जा रहा है। बहुत धुआं उड़ाया हुआ है। साफ नहीं आ रहा है। इतना कह के सो गया सूरज, कह के सो गया सूरज, चिरागो अब तुम्हारी बारी है। अबू साद सर का जाना आपके घर वालों, अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ साथ रियासत और मुल्क के लिए भी एक खसारा था। अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत नाजुक वक्त था। सलाम करते हैं हम डॉक्टर कमाल सैयद अंजर, शेख मुसब अबू साद नदवी, वसीउल्लाह सर, यूसुफ सर, मुफ्ती याकूब कासमी और मुफ्ती निसार कासमी का, जिन्होंने इतने बड़े नुकसान के बाद अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को अपने कंधों का सहारा दिया और अबू साद सर के ख्वाब और बनाई हुई तरतीब को संभाला। इसके अलावा कुछ मुखलिस लोग जिनका स्कूल की तरक्की के लिए हमेशा सपोर्ट रहा और अबू साद सर के इंतकाल के बाद वो अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ शाना बशाना खड़े रहे, जिनमें सर फहरिस्त प्रोफेसर आसिफ सर, हरदिल अजीज शबीर खान, मोहतरम आदिल खान, नेज़ दीगर मुखलिस हस्तियाँ शामिल हैं। चलिए देखते हैं इस आखिरी मंजर को, जिसमें शेख मुसब अबू साद नदवी, डॉक्टर कमाल सैयद अंजर, यूसुफ सर, मुफ्ती याकूब और मुफ्ती निसार का एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है। Organization known as Al Hidayah Group of Institution. So, without any delay, let's start the proceedings. My first question is to the chairman of this institution, Dr. Kamal. Sir, you were the founding member of this institution along with Abu Saad sir and Asif sir. Since the demise of Abu Saad sir, what are all the hardships that you had to face to run this institution? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, due to COVID, we witnessed the whole world went to a standstill. Secondly, during this COVID phase, my beloved friend was not just a friend but a brother for me passed away, which left everybody devastated. His demise during such difficult period was very endurable for everybody. The entire education system went to online mode. The lack of quality of students in education was clearly visible. Parents weren't able to pay fees on time. But we had overcome all these challenges, alhamdulillah. My next question to you would be, where would you see this institution standing 5 years from now? The main aim of AHPS right now is to focus on the dream of my friend late Abu Saad sir. He wished to open a medical college in Badlapur campus along with management college and pharmacy college. We are also working effortlessly to enhance the infrastructure of Al Hidayah Public School. We will be the #1 in quality education along with Islamic culture in all our 14 branches, inshallah. That's a great vision, sir. I hope that one day the dream of Abu Saad sir, on which you all are working, will come true. Now, let's move on to my next guest. He
General Secretary of this institution and also the elder son of late Abu Saad sir, Mr. Musab Naqvi. Sir, my first question to you would be, being an elder son, I know it wasn't an easy task for you after your father's demise to manage your work and your home, but how do you cope up with such an environment? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I want to tell you that my joining in this school has done before the death of my father. असल में मेरे वालिद साहब की ये सोच थी कि इस स्कूल के बच्चों को ग्राउंड रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है. On this basis, he allotted me the admin department so that I could understand all the work properly and can run this organization in a smooth way. But the Almighty had other plans. Within 1.5 months of my joining, my father passed away, and all the planning he had done for me went to a standstill. मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे. सबसे पहला तो घर को संभालना और घर के हालात को सुधारना था. दूसरा ये कि स्कूल के पूरे निज़ाम को बहुत कम वक्त में समझना और उसको चलाना. अल्हम्दुलिल्लाह इन 2.5 सालों में बहुत सारी चीज़ सीखने मिली और आगे भी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह. इस दौरान मैंने स्कूल के मिशन और विजन पर फोकस करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की. जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आप लोगों के सामने रखा कि ऑनलाइन के टाइम पर भी हमने पेरेंट के हालात को सामने रखकर बच्चों की तालीम को जारी रखा और साथ में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की. अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम जारी है. इन फ्यूचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक पूरी तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा. इसी तरीके से बच्चों के ताल्लुक जो भी चीज़ सामने आती रहेगी उसको पूरा करने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह. My next question to you would be, what's the ambition of Al Hidayah Group of Institution? The aim of our school is not only to educate but to provide education with Islamic culture, and it's a mind, souls and bodies where half is alim, doctor and scientist used to graduate under a single roof and become the leader of the world in all fields. May the Almighty grant you and your team a great success in the future. Now, let's move on to my next guest. He is the eldest amongst all, Mr. Yusuf. Sir, it's an honor to have you on stage. My first question to you would be, when did you join Al Hidayah and what's your role in this organization? پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا بھی بزرگ نہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں. Now coming on to your question, I joined Al Hidayah Public School in the year 2011 and from there on I am working as a finance manager. Since you are an integral part of Al Hidayah and have been working here from 2011, it has been almost 12 years now. My second question to you would be, what are all the challenges that you had to face to run this institution? The challenges were quite in number. During the year 2011, the infrastructure of Al Hidayah Public School was not very well developed. It was a quite a tricky phase for me. Handling parents of different mindset was the most difficult task during all this year. Collection of fee from parents was also a challenge. کتنی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ پیرنٹس کی کمپلین ہوتی ہے, آپ صرف پیسے کے لیے کال کرتے ہیں. اب جب میرا کام ہی وہی ہے اور مجھے اس کے لیے سیلری ملتی ہے, اس میں میری کیا غلطی, آپ ہی بتائیں. Indeed, sir, your work is quite difficult, and I hope کہ اتنا سب جاننے کے بعد پیرنٹس اب آپ کے ساتھ ضرور کوآپریٹ کریں گے. چلتے ہیں ہمارے اگلے مہمان کی طرف, مفتی یعقوب. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حفظ کے شعبے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو صاحب بھائی کا کہنا تھا کہ حفظ آخرت کی کمائی. امت کا تعلق قرآن سے مضبوط کرنے کے لیے 2014 میں شاداب منزل میں شعبہ حفظ قائم کیا گیا, لیکن اس سسٹم اور اس نظام سے خیر خواہ وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اس کے بعد 2015 میں شیل برانچ میں شعبہ حفظ قائم کیا گیا, جس میں ڈے بورڈنگ ٹائم کے تحت بچے صبح 7 بجے سے عشاء تک اساتذہ کی نگرانی میں کھیلتے ہیں اور انہی کی نگرانی میں پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ یہ شعبہ امید سے زیادہ پڑھ کر کامیاب رہا ہے. جب یہ شعبہ شروع کیا تب اکثر لوگوں نے, یہاں تک کہ کچھ علماء اکرام نے تنقید کی, مگر ابو سعد بھائی کے نیک اخلاص, ٹھوس ارادے اور اللہ کی طرف رجوع کی وجہ سے اب تک 71 بچوں نے حفظ مکمل کر چکے ہیں اور 17 بچوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کی شہادت بھی حاصل کی ہے. فللہ الحمد. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابو سعد سر کے ذہن میں عالمیت کو لے کر اور کیمپس اوپن کرنے کا خیال کیسے آیا؟
उम्मत के लिए सही रहनुमाई और हर तरीके से उनके रहबरी के लिए ऐसे रहनुमाओं और कायदीन की ज़रूरत थी और हर शोबे और हर फील्ड में उम्मत का सही रहबरी का फरीज़ा अंजाम दे सके। इसके लिए 2015 में जब शील ब्रांच में शोबा टेक्स कायम किया गया, तब ये डिसाइड कर लिया गया था कि एक ऐसा कैंपस हो जिसमें 10+ ईयर्स के साथ साथ आदमी तक ग्रेजुएशन का मजबूत निज़ाम हो, और इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने 2018 में अबू साद भाई को बदलापुर में बड़ी जगह का इंतज़ाम करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अबू साद भाई की ज़िंदगी में ही बाकायदा कैंपस बनकर तैयार हो गया था और उसमें तालीमी निज़ाम शुरू हो गया। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे अलहिदा के एजुकेशन सिस्टम और हिफ्ज़ सिस्टम की तरह इसे भी कामयाबी अदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। Our well wishes are with you, sir. चलते हैं हमारे आखिरी मेहमान की तरफ, मुफ्ती निसार, जो बदलापुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अबू साद सर के जाने के बाद आपके कैंपस पर क्या असर पड़ा? अबू साद सर के जाने के बाद सिर्फ कैंपस ही नहीं, हर वो काम जिससे वो वाबस्ता थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त यतीमी का शिकार हुआ। कैंपस क्योंकि एक नया पौधा था, उसे सहरावे की ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर उसी दौरान लॉकडाउन भी चल रहा था, इसलिए हमारा कैंपस जो अभी शुरू ही हुआ था उसे एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स ने फाइनेंशियल रीजन की वजह से अपने बच्चों को कैंपस से निकाल लिया, मगर जो इंस्पिरेशन हमें अबू साद सर से मिली वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। कैंपस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता रहा। लॉकडाउन में भी मैं हर अल्टरनेट डे उम्रा से बदलापुर जाता था। हमारा स्टाफ कैंपस में मौजूद रहा। हाँ, एक रहबर की कमी खलती रही और हमेशा रहेगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर के पहले और जाने के बाद आपके बदलापुर कैंपस पर क्या चेंजेस आए? कैंपस का रोड मैप अबू साद सर ने इतने डिटेल में सेट किया था कि एटलीस्ट हमें प्लानिंग की फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एग्जीक्यूशन एक टफ जॉब है और हमारा कैंपस एक नया इंस्टीट्यूट, इसलिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो आई, और उसकी एक वजह ये भी थी कि डॉक्टर सर, मौलाना मुसाब और पूरा अली दाया गमगीन था। लेकिन जो टीम अबू साद सर तैयार कर गए थे उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लिहाजा पूरा अली दाया उसी आबोताब के साथ चलता रहा, और हमारे चेयरमैन डॉक्टर कमाल अंजर और अबू साद सर के फर्जंद मौलाना मुसाब ने अल्लाह की तौफीक से काम को संभाला, और हमारा कैंपस अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पहला 10th का बैच भी फारिग हुआ और इसी साल हमारा एक स्टूडेंट हाफिज भी बना। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब क्या एम्बिशन है आपका, क्या प्लान है इस कैंपस को किस तरह आगे लेकर जाया जाए? कैंपस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पूरा रोड मैप भी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक कैपेबल टीम भी, इसलिए हम अबू साद सर के ड्रीम को ही फॉलो करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक बेहतरीन इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल है जहां हम स्टूडेंट्स को हिफ्ज़, आलिमियत और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। आगे रोड मैप में मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी है। आलिम स्टूडेंट्स के लिए हम UPSC की भी तैयारी कराएंगे इंशाअल्लाह, बट हमारा फोकस क्वालिटी अभी एजुकेशन है कि लॉकडाउन में जो चीज़ सब पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है वो एजुकेशन ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जारी है, आपकी दुआएं भी साथ रही तो काम और आसान हो जाएगा। That's great. So, we have seen this team of Al Hidayah group of institutions working day and night to provide quality education with Islamic culture for the betterment of the students. That's all from ANI News. Thanks to all the guests for providing this valuable information. या जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उम्मत मोहम्मदिया पर रहम कर, ऐ रब्बे करीम। अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को हर शर से महफूज रखना। एक आखिरी अबू साद सर के हवाले करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। Thank you very much for watching and listening to us so patiently. Jazakallah wa khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.